Good morning to all of you. Today is the topic of depositional landforms. And last time we was discuss the erosional landform, and today we are discuss depositional landforms. It means when the hilly land area is and the plain land area is start, then the every running process is stop, and the deposition process is also and the deposition landforms also the at that time they are become the many structures and their landforms. And first of all, alluvium plain, alluvium fan. एलुविलियम फैन क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ पंख। जब भी रिवर जो है क्या होता है कि रिवर जब हिली एरिया से लो लैंड एरिया की तरफ जाती है तो अपने पानी अपने साथ में बहुत सारे जो है, जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल जो है, वो बहुत सारा अपने साथ में लेके चलती है। और जैसे ही वो लो लैंड एरिया के अंदर आती है तो अपना सारे का सारा जो रॉ मटेरियल है उसको जो है बिखेरना शुरू कर देती है अलग अलग नालिकाओं के अंदर। हम कह सकते हैं अलग अलग दिशाओं के अंदर जो है इज कॉल्ड द एलुविलियम फैन। अगर हम बात करते हैं कि ये कैसे बनता है, तो when the stream flowing from the higher level breaks into the foot slope and of the low gradients and normally very coarse loaded in the carrying by the stream following over mountain slope, this load become too heavy for the stream to be become the carry of journal gentle gradients and the get dumping spread and the bro low to high cone shapes and the position called the alluvium fan. And usually these streams which are flow over the fan are not the confined to their original channel for a long and the shifting their position across the fan forming many channels called the distributary. इसमें कहने का मतलब ये है कि जो भी जो रिवर है वो अपने साथ में जितने भी तरह की जो है मलबा वो लेकर आ रही है, जब वो लो लैंड से जो जो अपलैंड से जो वो लो लैंड की तरफ आती है तो उसमें क्या है, वो अपने साथ में जितने भी तरह की कंकर पत्थर हैं या फिर जिसको बोलते हैं सॉइल है या फिर जिसको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, वो क्या करती है धीरे धीरे करके लो लैंड के ऊपर जमा करना शुरू कर देती है। और ये जमा करती है तो जैसे जैसे ये रिवर्स बहती रहती है वैसे वैसे ये जो पंख है वो बड़ा होता रहता है, तो जिसे को हम क्या बोलते हैं एलुविलियम फैन। और एक फैन के आकार की ये जो शेप बनती है जिस कारण से हम इसको एलुविलियम फैन बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी वो है हमारी डेल्टा। Delta is the form we can say that the when the rivers is not have a proper channel, we can say that the not a proper track, and it was divided into the some small streams is called the delta. Here I show you it's a major stream, and if there is a high slope and here is a low slope, then
the main distributary change into the small distributary, and their deposition is also dependent on their slopes, and we can say that it's the form of the delta. और नेक्स्ट क्या है हमारा, जिसको हम बोल रहे हैं हम meanders. meanders भी एक तरह की हमारी जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। इसमें क्या है, जो रिवर फ्लो करती है, तो रिवर जब फ्लो करती है तो वो इस एक तरह की स्नेक शेप के अंदर वो फ्लो करती है। उसमें क्या है, यहाँ से वो कटाव करेगी, यहाँ पर वो डिपोजिशन करेगी, यहाँ पर वो जो है यहाँ इरोजन करेगी, यहाँ डिपोजिशन करेगी, फिर यहाँ इरोजन करेगी, यहाँ डिपोजिशन करेगी, फिर यहाँ इरोजन करेगी और यहाँ डिपोजिशन करेगी, यहाँ पे इरोजन करेगी। इट मीन्स एक पार्ट को वो जो है कट कर रही है और दूसरे पार्ट को वो इरोजन कर रही है। एक पार्ट में वो अपने द्वारा लाएगी जितना भी उसका वेस्ट मटेरियल है उसको क्या है वहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, और एक पार्ट को क्या है वो कटाव करेगी, यहाँ कटाव करेगी, इसका डिपोजिशन यहाँ करेगी, यहाँ से फिर यहाँ से कटाव करेगी, यहाँ डिपोजिशन करेगी। तो ये प्रोसेस है, इज कॉल्ड द meanders, और it's a working in like a loop is like a channel pattern called the meanders. We can say that it is a large flood and the delta plains. We can say it's a higher part, we can say that it's a big delta is called the meanders. And large flood and the delta plain river rarely flow in the strength course loop like a channel pattern called the meanders. Developing over the flood and the delta plain, meander is not a landforms but it only a type of the channel pattern. We can say that the channel pattern, and this is because of the porosity of the water flow over very gentle gradients to work literally on the bank, and unconsolidated nature of the alluvium deposit making up the bank with many irregularity which can be used by the water expanding process pressure literally, and Coriolis force act on the flood water and deflected it like it deflected the wind, and when the grains of the channel become extremely low water flow leisurely and the started working literally. It means क्या है कि जब भी जो है जो मेंडर्स बनते हैं, मेंडर्स में क्या है मेनली क्या है, जो इसमें मंद, एक तो हमारा जो है इसमें मंद डाल पर बहता हुआ जो जल होता है वो तटों पर क्षैतिज या पार्श्व कटाव करने की प्रवृत्ति होती है इसमें, और जो जितने भी तरह के हमारे तट बनते हैं उन पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव करता है, जैसे मैंने यहाँ बताया जमाव करता है, एक साइड में इरोजन करता है जिससे जल के दबाव का नदी का पार्श्व बढ़ जाता है और प्रवाही जल का कॉर्लिस प्रभाव से विक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार से हम कॉर्लिस इफेक्ट में जैसे विंड का इफेक्ट पड़ता है, विंड जितनी भी चलती है उत्तरी ध्रुव जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है हम दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे हम बात करते हैं, बाहिनी और जो रिवर जो चलती है विंड वो कॉर्लिस इफेक्ट के कारण है। सेम थिंग वैसे ही हमारी जो है ये मेंडर्स बनते हैं। उसके बाद हमारे जो फोर्थ है इसको हम बोलते हैं ब्राइडेड चैनल। इट मीन्स क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुम्फित नदी। when the river flow in the inner part of the earth is called the, we can say that the
ब्राइड्स। और इसमें क्या है कि जब भी जो रिवर है वो क्या होता है, उसके अंदर जो रिवर है वो कई धाराओं के अंदर जो विभाजित हो जाती है, और विभाजित होने के बाद क्या है, वो एक तरह की जो है जैसे हम बात करते हैं कि जब भी जो रिवर है उसके अंदर जो मेनली है उसका प्रवाह किनारों और क्षितिज प्रदान करता है, और नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ने पर उसके जल आयतन कम होने पर प्रवाहित जल अधिक मात्रा में एक क्षितिज अवरोध के रूप में द्वीपों में बढ़ जाता है, और गुफित नदी प्रारूप के रूप में तटों पर अपर्दन व निक्षेपण आवश्यक होता है। यह नदी में जल की मात्रा कम और जलोढ़ अधिक होने के कारण तक चैनल में यहाँ रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबाई अवरोधिकाओं का जमाव हो जाता है, और नदी चैनल कई जल वितरकों में बढ़ जाता है, और जल के प्रवाह को वितरका आपस में मिल जाती है और फिर पतली पतली उपधारणाओं में बढ़ जाती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि मेनली जो गोफिंद नदी जो है, जो जिसको ब्राइडेड चैनल बोलते हैं, इसमें क्या है, जो मेनली जो है रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा जो है हमारा प्लस में हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वाटर की जो हम कहते हैं भी मात्रा है वो कम हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, हमारी कुफित नदी बनती है। हमें ऊपर से जो क्या है, कोई भी रिवर अगर फ्लो कर रही है तो ऊपर से हमें क्या है, उसके अंदर जो भी तरह का मलबा है, जो उसमें रॉ मटेरियल है, वो हमें दिखाई देगा, लेकिन जो नदी का फ्लो है वो उसके नीचे से होता हुआ हमें दिखाई कम देगा। इस कॉल्ड द हमारी ब्राइडेड चैनल। तो आज हमने डिपोशनल लैंड्स फॉर्म्स के बारे में बात की, जिसमें एल्यूविलियम फैन है, डेल्टा है, मेंडर्स है और ब्राइडेड चैनल्स है। ये जो है इस तरह से हमारी अलग अलग शेप्स बनती हैं, और ये हमारा एक तरह का जो लो लैंड एरिया के अंदर जितने भी तरह की हमारी लैंड फॉर्म्स बनती है, ये उसी के ही पार्ट है सारे के सारे। ओके, थैंक यू।